قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عن ابن عمر أن مولاته له أتته فقالت اشتد علي الزمان وأني أريد أن أخرج إلى العراق. قال فهل الشام أرض المنشر وفي التاريخ المحشر. اصبري لقا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولاويها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حضرات گرامی، سلسلہ احادیث صحیحہ میں آج کی حدیث نمبر 3073 یعنی 70 پر 3، اور اس کے علاوہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے اور ابن ماجہ اور ابن عساکر نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے ابن عمر، یہاں پر مدینے میں میرے اوپر حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں۔ اشتد علی الزمان، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ مدینہ چھوڑ کے عراق چلی جاؤں۔ اس لونڈی نے کہا کہ مدینے میں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہے، حالات بہت تنگ ہیں، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ کے عراق جانا چاہتی ہوں۔ تو ابن عمر نے کہا فہل الشام، عراق کیوں؟ ملک شام چلی جاؤ، عراق سے بہتر ہے ملک شام۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں مکہ اور مدینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو آئی ہوئی ہے وہ ملک شام، سیریا۔ اور قرآن و حدیث میں جب ملک شام، سیریا کہا جائے تو آج جو شام ہے وہ مراد نہیں، بلکہ آج تو نبی کے زمانے کا جو ملک شام تھا، سیریا تھا، وہ آج 4-5 ملکوں میں منقسم ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی جو شام ہے یہ سیریا، فلسطین اور اسرائیل، پھر اسی طرح سے جارڈن، جس کو اردن کہا جاتا، جارڈن، لیبنان اور اس سے متصل جو علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، سب اس میں داخل ہے۔ اس کو کہا کہ تم عراق کے بجائے ملک شام چلے گئی ہوتی، فہل الشام، کیوں ملک شام کو حضرت ابن عمر نے اس کی سفارش کی اور اس کا ریکمنڈ کیا، کہا کہ ارض المنشر، اور پھر تاریخ، اور امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں کہا کہ ارض المحشر، یعنی محشر کی سرزمین، محشر کی سرزمین ہے یہ ملک شام۔ ہمارے پاس مشہور کیا ہے؟ محشر کہاں قائم ہوگا؟ عرفہ کے میدان بولتے ہیں ہم لوگ، کیا بولتے ہیں؟ عرفہ کے میدان میں حشر کا میدان ہوگا۔ اس کے لیے کوئی آتھینٹک روایت نہیں ہے۔ عرفہ کا میدان حشر کا میدان ہوگا، اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اور ملک شام، سیریا، یہ محشر کا میدان ہوگا اور یہ محشر کی سرزمین ہے۔ اس کے لیے صراحت کے ساتھ دلیل ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول سے ابن عمر نے کہا کہ دیکھو یہ ارض المنشر والمحشر، یہ منشر کی بھی جگہ ہے، محشر کی بھی جگہ ہے، یعنی یہیں سے لوگ پھیلیں گے اور یہیں پر لوگ جمع بھی ہوں گے۔ حشر کے معنی جمع ہونا اور منشر کے معنی نشرہ کے معنی پھیلنا۔
तो लोग यहीं से फैलेंगे और यहीं से जमा भी होंगे, यहीं पर जमा भी होंगे। यहां पर जमा होने, इसको जो महशर कहा गया दो माने में, एक तो महशर का मैदान हो, और इस सिलसिले में अहले इल्म ने बहुत सारी बातें, बहुत बहसें की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि क़यामत के मैदान में, या उस जब क़यामत आएगी, यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द वस्समावात, ये जो जमीन आसमान देख रहे हैं इन सबको बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो ये जमीन ये आसमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला चाहे तो इसको बदल के फिर वही मुल्क शाम में ही महशर का मैदान कायम करे। अल्लाह बेहतर जानता है उसकी कैफियत क्या होगी। और इसी तरह से महशर इसलिए भी कहा गया कि आखिरी जमाने में जब महदी का ज़ुहूर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, महदी का ज़ुहूर होगा, उस वक्त दज्जाल भी आएगा। दज्जाल जो कि शैतानों का सरबरा होगा, लीडर होगा, और महदी जो नेक लोगों के लीडर और कायद होंगे, उनके साथ ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। और ये जो लोग जमा होंगे और इनके माबाइन जो जंग होगी वो भी मुल्क शाम में ही, सीरिया में ही। आपने सुना होगा दज्जाल के हदीस के ताल्लुक से कि दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले दज्जाल सारी दुनिया में फितना फसाद मचाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत की सुबह तक का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। इसलिए नबी ने कहा कि हर नमाज के तशहुद में मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है। सारी दुनिया में फितना फसाद मचाएगा, लेकिन मक्का और मदीना दो जगह जा नहीं पाएगा, वहां जा नहीं पाएगा, फरिश्ते मार भगाएंगे उसको। उसके बाद वो जाते पहुंचते पहुंचते दुनिया के चिप्पे चिप्पे को छानते हुए आखिरकार मुल्क शाम पहुंच जाएगा। मुल्क शाम पहुंचेगा, वहां भी फितना फसाद मचाएगा, और 70 लाख यहूदी उसके साथ होंगे। 70 लाख यहूदी या 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। तो ये यहूदी आज इंतजार कर रहे हैं दज्जाल का, दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतान की इबादत करते हैं, शैतान की इबादत गुजार भी हैं इस रुए जमीन में, जिनको एलोमिनाटी कहा जाता है। इंग्लिश की इस्तिलाह में ऐसे लोगों को एलोमिनाटी कहते हैं। ये आप यूट्यूब में जाकर बहुत सारे लोगों की वीडियो इस ताल्लुक से हैं, सुने और इल्म हासिल करें कि उन लोगों की अलामतें क्या हैं और कैसे कैसे ये लोग दुनिया वालों को फितना और फसाद में मुब्तला कर रहे हैं। ये जो एलोमिनाटी एजेंडा है, शैतान के वर्शिपर्स हैं, शैतान की इबादत करने वाले हैं, ये इनकी बुनियाद यहूदियत है, यहूदियत है। इनके बुनियाद यहां पर इंडिया में 3% लोग हैं, वो हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं, जो आज सारे इंडिया को कब्जा करना चाहते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर वो फाइज हैं। ये शैतान की इबादत गुजार हैं। और ये लोग सबसे पहला हथियार जो इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक के साजो सामान, उसके आलात, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनकी अलामत हैं, आप देखे होंगे जो बहुत सारे म्यूजिशियन हैं या बहुत सारे सिंगर्स हैं, वो गाते गाते एक अलामत का इजहार करते हैं, नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद, फारसी में कहते हैं कि कुफरिया बात कभी किसी को बताने के लिए कहना वो नहीं है, मैं अगर कर रहा हूं तो नहीं, आपको समझाने के लिए। ये जो निशानी होती है, ये जो निशानी वो करते ऐसे, ये जो ऐसे करते हैं ना, क्यों? एक आंख ये दज्जाल की अलामत है, एक आंख दज्जाल की अलामत है। ये एलोमिनाटी इनकी निशानी है, शैतान के और शिपर की ये निशानी है। और ये लोग, शैतान भी सबसे पहले आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह किया किसके जरिए से? आप मालूम करें, तारीखी रिवायतें हैं, हाबिल और काबिल के दरमियान जब झगड़ा हुआ, काबिल चला गया, छोड़ के चला गया, अलग हो गया, पहाड़ में रहता था। उस वक्त उसके पास शैतान आया
शैतान आने के बाद वो नौकर के भेष में आया, नौकरी चाकरी करने लगा। रहते रहते तमाम लोगों का जायजा लिया। उसके बाद सबसे पहले उसने एक बांसुरी बनाई, फ्लॉट, एक बांसुरी बनाई। बनाने के बाद फ्लूट बोलते उसको, तो फ्लूट बनाया, बांसुरी बनाई। बनाने के बाद उसमें क्या करता था, जब लोग जमा होते थे, गैदर होते थे, वो उसमें फूंक मारता था, बांसुरी बजाता था। लोग अच्छी आवाज है और इस आवाज में कशिश है, सब जानते हैं इस आवाज में कशिश है। खींचे चले आए, सब जमा हुए। उसके बाद गैदरिंग हुई, मर्द आए, औरतें आए, डांस शुरू हुआ। शराब के साथ कबाब शबाब सब में बुराइयों में मुब्तला हो गए। सबसे पहले अखलाकी जुर्म जो शुरू किया, एक तो अकीदे का जुर्म शिर्क शुरू करवाया, अखलाकी जुर्म में ये काम करवाया। और आज आप देखते जाइए, न्यू जनरेशन का बहुत बड़ा रोना यही है कि आज म्यूजिक के ऐसे रसिया बन चुके हैं, ऐसे दिलदादा बन चुके हैं, घर में लोग परेशान हैं। और ये जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, नबी ने कहा कि ये सबसे बड़ा फितना है। कैसे कहा? सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जागे, जागने के बाद बड़े परेशान हुए और कहा आपने, मैं देख रहा हूं कि फितने दाखिल हो रहे हैं तुम्हारे घरों में, बारिश के कतरों की तरह, बारिश के कतरों की तरह फितने दाखिल हो रहे हैं। और ये हर जगह पर, चाहे देहात हो, शहर हो, हर घर में ये दाखिल होगा। आज बताओ, इंटरनेट का फितना हर घर में दाखिल हो चुका है। ये रेस जो बारिश के कतरों की तरह है। आपका घर बंद है, आपने सारे मास्टर बेडरूम सब बंद करवाया है, आपके जवान लड़की और लड़के के हाथ में स्मार्टफोन है, सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद आपके घर के अंदर चोर दाखिल हो चुका है, चोरी कर रहा है, डाकू डाका डाल रहा है आपके घर के अंदर, आपको पता नहीं है कि नहीं? पता नहीं बच्चा कहां बिगड़ गया, लड़की कहां चली गई, क्या कहां, घर का दरवाजा बंद है, सब कुछ है, लेकिन शैतान और फितने जो दाखिल हो रहे हैं इस शक्ल में। याद रखो मेरे भाइयों, ये वक्त का बहुत बड़ा फितना है और आज सारी दुनिया इसके रसिया बनते जा रहे हैं। और उसके अंदर एक अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं, फौरन एक ऐड आता है, उसको क्लिक किए, फिर कुछ आता है, जाते 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 कहां चले जाता है। नबी ने इसी को फरमाया, सुबह में इंसान सुबह करेगा मोमिन बन के, उसके बाद जाते जाते शाम तक काफिर बन जाएगा। शुरू किया मोबाइल देखना, इंटरनेट देखना, सर्च करना नेक नियति के साथ, जाते जाते कहां चला गया, क्या क्या देखने लगा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी ने फरमाया, कल क़यामत के मैदान में कुछ लोग आएंगे जिनकी नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर होंगे, लेकिन वो तन्हाइयों के गुनाह ऐसे होंगे, नमाज रोजा हज ज़कात सब करेंगे, नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर, लेकिन तन्हाइयों के गुनाह की वजह से सारी नेकियां बर्बाद और आखिरकार जहन्नम में जाएंगे। तन्हाइयों का गुनाह मोबाइल इंटरनेट का फितना नहीं तो और क्या बोलो। तन्हाई में आज अच्छे अच्छे लोग किसी की हकीकत को मालूम करना चाहते हैं, उसके मोबाइल ले लो और उसकी हिस्ट्री चेक करो, या तो गैलरी चेक करो या हिस्ट्री चेक करो कि उन्होंने यूट्यूब में क्या क्या देखा, उसकी हिस्ट्री, गूगल में क्या क्या सर्च किया, उसकी हिस्ट्री देखो, मालूम हो जाएगा कि हजरत कितने पानी में है। अब बताइए, जब हम मालूम कर सकते हैं, अल्लाह ताला मालूम नहीं कर सकता है? और हमने क्लिक किया है ना, हमारी गवाही, उंगलियां गवाही देगी कहां कहां हमने क्लिक किया है। याद रखो, अल्लाह ने इसीलिए कहा कि तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। हमें सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। आज का ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। बहरहाल बात शायद अधूरी छोड़ना पड़ेगा, मुकम्मल हदीस नहीं हो रही है। अर्जुल महशर और मिनशर जो मैं बता रहा था, महशर, तो दज्जाल वहां पहुंचेगा, जो उस वक्त उसके साथ यहूदी लोग, आज जो सारी दुनिया में ये यहूदी लोग जो दज्जाल के इंतजार में हैं, शैतान के परस्तार हैं, ये लोग आपस में घमासान होंगे और वहां पर लड़ाई होगी। ईसा अलैहिस्सलाम मसीह को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद, एक जगह बाबे लुद, वहां पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ये सरजमीन कहां है? आप आज के मौजूदा इजराइल में हैं। हदीस में शाम कहा गया इसको, और कहा कि उस वक्त मुसलमान चुन चुन कर यहूदियों को कत्ल करेंगे और उससे पहले यहूदी बड़ा फितना फसाद मचाएंगे। आज जितने फितने हैं, जहां पर भी फितना बपा है, सबके पीछे यहूदियों का हाथ है।
बड़ा फितना मचाएंगे, फिर उसके बाद इनको खत्म किया जाएगा, चुन चुन के कत्ल किया जाएगा, यहां तक कि दरख्त के पीछे, पहाड़ के पीछे, पत्थर के पीछे, दीवार के पीछे यहूदी छुपेंगे तो वो कहेंगे मुसलमान को पुकार के, या अब्दुल्ला ताल हादा यहूदी में वराई, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसको कत्ल कर, इल्लल गरकद, सिवाय एक दरख्त जो कि गरकद है, गरकद है, जिसको उर्दू में कहते बरगद, बरगद ही जाके गरकद हो गया, यह गरकद से ही बरगद निकला। और आपको पता है यह बरगद, उसको बनियान ट्री इंग्लिश में कहते हैं, बनियान ट्री, इसकी इबादत करते हैं वही 3% लोग, जिसके वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां निकलती है ना, रोड किनारे आ जाए काटेंगे नहीं उसको, और हर उनकी इबादत गाह के पास, आजकल नाम लेना मुनासिब नहीं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी इबादत गाहों के पास बाकायदा वो दरख्त लगवाना जरूरी है। इनको हमारी हदीस पे इतना यकीन है, आज इजराइल में सबसे ज्यादा यही दरख्त लगाए जा रहे हैं। क्यों? फइन्नहा मिन शजरिल यहूद, इसलिए कि यहूदियों का दरख्त है, ये दरख्त उनको छुपाएगा, इसलिए सारे इजराइल में वही दरख्त वो लोग बना रहे हैं और उसको जो उगा रहे हैं वो छुपाएंगे, लेकिन सबको खत्म किया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम, सारे ईसाई लोग मुसलमान हो जाएंगे, बेहतरीन दौरा होगा, क्योंकि यहां से सब जमा होंगे यहां पर, इसलिए उसको महशर कहा गया। मेनशर पर यहीं से फैलेंगे भी, यहीं से फैलेंगे मुल्क शाम से। जब महदी आएंगे, सारे दुनिया वालों से लोगों ने, नबी ने फरमाया कहीं भी रहो जाकर महदी के हाथ पे बैयत करो, सब लोग वहां जमा होंगे। और उस वक्त कुछ लोग काबे पर चढ़ाई करने के लिए भी जाएंगे। ये लंबी तफसीलात है आखिरी जमाने के। काबे पर भी निगाह किसकी है? यहूदियों की ही निगाह है। याद रखना मेरे भाइयों, ये एक ऐसी मुनज़्ज़म साजिश है जो रची जा रही है। मुसलमान अभी भी ख्वाब गफलत में है, और अभी भी अल्लाह ताला ने हमें रखा है यहाँ हमारे मुल्क में और दीगर जगहों में, तो सिर्फ अल्लाह के फजल करम से हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें चाहिए कम से कम अल्लाह की तरफ लपके और नेक बने। दुआ रब्बुल आलमीन से हदीस का और जायज़ा इंशाअल्लाह मदीने की फजीलत के ताल्लुक से जो है, और मदीने से क्यों निकलने से मना किया, आगे मालूम करूंगा। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद।